Good afternoon and welcome to Apsara Physics class. And students, let's start with the topic current, electricity and resistor. So, in last lectures we have done a lot of numericals from electrostatic, and now I am going to start with resistor and current. So, let's start with the first numerical. Here I have extracted simple numericals, simple statements, and then we will proceed toward complex. So first है resistance is. So your resistance जो है आपका R is equal to V upon I. This is your answer. क्यों? देखिए सिंपल है, आपको पता है V is directly proportional to I. When we apply voltage, current will flow. So V is directly proportional to I, and V is equal to IR, where R is constant of proportionality known as resistor, and this resistor is equal to V upon I, that is the ratio of voltage to current. So here R is equal to V upon I. Now come on second numerical. यहाँ पे है second numerical. A conducting wire has length L1 and diameter D1. After stretching the same wire, length becomes L2 and diameter D2. The ratio of resistance before and after stretching is. Okay, यहाँ पर हम find out करते हैं. एक conducting wire है and its length and diameter has been given. So here in this numerical, length जो है आपकी L1 and diameter जो है that is D1. ये है आपके पास, this is before stretching, and when this wire is stretched, तो after stretching इसकी length L2 and diameter D2. So here we are supposed to find the resistance before and after stretching. So हमारे पास ये given है. अब हमें पता है R is equal to rho L upon A. This is resistance. So R1, let R1 is the resistance before stretching, rho L1 upon A1, and R2 is resistance after stretching, so it is rho L2 upon A2. Now this rho is resistivity which is constant, so यहाँ पे हमारे पास आया. Now we have to find the ratio of these before and after stretching. So divide this and this. So we will get is, जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा ये L1 upon A1 इंटू A2 upon L2. आफ्टर डिवाइडिंग आपके पास ये आ रहा है. ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो ये जो वायर है जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो इसका जो वॉल्यूम है बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग दैट विल बी सेम. वॉल्यूम जो हमारे पास है, और वॉल्यूम जो होता है दैट इज एरिया इनटू लेंथ. वॉल्यूम हमारे पास, तो बिफोर स्ट्रेचिंग वायर की लेंथ A1, एरिया लेंथ L1, एरिया A1, दिट इज इक्वल टू L2 A2. दिस इज द लेंथ एंड एरिया आफ्टर स्ट्रेचिंग. अब यहाँ से हमारे पास ये वॉल्यूम है बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग. तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 में मेरे पास L1 अपॉन L2 है एक टर्म, तो मैं L1 अपॉन L2 अगर लेती हूँ दैट इज A2 अपॉन A1. ये आया. सो आई कैन सब्सटीट्यूट, मैं इस 1 में L1 अपॉन L2 पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू, देखिए A2 अपॉन A1 रखा मैंने एक साइड, A2 अपॉन A1, और दूसरा है L1 अपॉन L2 दैट इज ऑल्सो A2 अपॉन A1. सो मेरे पास ये आया A2 अपॉन A1 का स्क्वायर. अब सिंपली हमें पता है दिस इज द रेशियो ऑफ द एरिया, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर, क्योंकि डायामीटर दैट इज द डबल ऑफ रेडियस, तो वो भी डी स्क्वायर जाएगा. तो R1 अपॉन R2 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, D2 अपॉन D1, ये है पाई आर स्क्वायर, तो D2 का स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर का स्क्वायर. यहाँ पे एरिया सब्सटीट्यूट करेंगे आप पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, और बाकी आपके पास D2 अपॉन D1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू D2 4 अपॉन D1 4. सो
आपके पास ऑप्शन में है रेशियो ऑफ D2 4/D1 4. Here this is your answer. Little bit lengthy है but simple है ये. Now then third numerical, how the shunt wire should be. शंट जो होता है दैट इज़ ए लो रेजिस्टेंस होता है आपके पास, जो स्मॉल रेजिस्टेंस लेते हैं हम जिसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, दैट इज़ शंट. तो शंट जो है हमारे पास, शंट वायर शुड बी, शंट वायर जो है दैट शुड बी लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड थिन. अब आप पूछेंगे कि कैसे लॉन्ग और थिन हमें क्यों लेना है. तो देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस होता है ρL/A, means resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area और equal to 1/πr². तो देखिए resistance is directly proportional to length, so resistance wire should be long and inversely proportional to this. तो ये क्या होनी चाहिए आपकी, थिन होगी तो ही आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा. तो आपके पास ऑप्शन आया लॉन्ग एंड थिन. Now next है the resistivity does not change if. The resistivity does not change. Resistivity change नहीं होती है if the shape does not change if shape of resistor change. अगर आपके रजिस्टर का चेंज करें भी तो हमारा रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है. क्यों? देखिए रेजिस्टिविटी जो है रो इज इक्वल टू m/ne² टॉक. यहाँ पे रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन हमारे पास जो भी है मास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. सो रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जो रेजिस्टिविटी है यहाँ पर हम क्लियरली फाइंड आउट कर रहे हैं कि दैट नॉट डज डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द रजिस्टर. तो अगर आप शेप ऑफ रजिस्टर को चेंज भी करते हैं तो रेजिस्टिविटी जो है दैट विल नॉट change. Now next numerical है a metal rod of length 10 cm and rectangular cross section of 1 cm into half cm is connected to a battery across opposite face. The resistance will be. यहाँ पे क्या है, एक metal rod given है whose length is 10 cm and rectangular cross section, एक rectangular cross section है whose length is 1 cm and breadth may be half cm is connected to a battery. metal rod और rectangular frame जो हैं they are connected to battery across opposite faces. opposite faces के across connect किए गए हैं. then the resistance will be. तो हमें इसकी resistance find out करनी है. so let's see this. now here are the options. तो इन ऑप्शंस में हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ रॉड. जो रॉड है इट्स लेंथ इज 10 cm. अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है. रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन है 1 cm इंटू हाफ cm. इसका मतलब दिस इज द एरिया. ये एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ. अब हमें कहा गया कि दिस रॉड, लेंथ ऑफ रॉड दिस एंड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी अक्रॉस इस ऑपोजिट फेसिस. सो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस. तो अब देखो रेजिस्टेंस की बात करते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A. इट मीन्स रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम. रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा इफ़ इट्स एरिया विल बी मिनिमम. अगर इसका एरिया जो है इसका मिनिमम होगा. और एरिया जो है हमारे पास यहाँ पर मिनिमम तब होगा जब जो बैटरी है वो कनेक्ट हुई है यहाँ पे हमारे पास इससे 1 cm इंटू हाफ cm की रेक्टेंगुलर फ्रेम से. तो सीधी से हमारे पास जो, अब देखिए ऑप्शन हुआ क्या है, आपको देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपका रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन योर एरिया इज मिनिमम. अब हमारा जो एरिया है दैट विल बी मिनिमम ओनली. एरिया तब मिनिमम होगा कौन से ऑप्शन में एरिया मिनिमम, देखो 10 cm इंटू 1 cm. तो ये एरिया ज़्यादा है
1 सेंटीमीटर इंटू हाफ सेंटीमीटर, तो दिस इज द मिनिमम एरिया। तो हमारे पास आएगा मैक्सिमम व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 सेंटीमीटर इंटू हाफ सेंटीमीटर फेसेस। ओनली इस केस में हमारा एरिया मिनिमम आएगा, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी मैक्सिमम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसेस। अब देखिए कंडक्टेंस की जहाँ पे बात करते हैं हम, तो कंडक्टेंस जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो V इज इक्वल टू IR, तो आपका रेजिस्टेंस V अपॉन I दैट इज इक्वल टू वोल्ट, हमारा जो भी वोल्ट के यूनिट्स और करंट के यूनिट्स हमारे पास, वोल्ट अपॉन एम्पियर दैट इज ओम। तो कंडक्टेंस हमारा 1 अपॉन ओम दैट इज ओम इनवर्स, या तो ओम इनवर्स बोलते हैं या इनको उल्टा करके लिख देते हैं ओम, तो इसको लिख देंगे MHO या तो MHO। दीज आर ऑल्सो द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, या ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू साइमन। सो यूनिट जो हमारे कंडक्टेंस के यहाँ पे आपका आंसर क्या दिया है, साइमन। ओम इनवर्स 1 ओम इनवर्स दैट इज इक्वल टू साइमन, सो अवर यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन। देन the poorest in electrical conductivity among following metal is silver, copper, gold, aluminium। इनमें जो हमारा जो भी सब all these are the elements metals, all are good conductor of electricity, but इनमें silver is the best conductor and poorest इनमें जो सबसे पोअर कंडक्टर है दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी इन सब में कम है। फर्स्ट हमारे पास सिल्वर आता है, फिर उसके बाद कॉपर, गोल्ड एंड देन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी है वो हमारे पास कम है, सो इट इज द पोरेस्ट कंडक्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। अब जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ वायर।